Good evening, Hina. Very good evening and wonderful evening. So, good to see you. Very good evening, Fahad. Wonderful evening. Good evening, Fahad. Very good evening. Uh, I'm great, Hina. Thank you. And you? Good evening, Huzafa. Very good evening. And good to see you that you are coming here for the first time. That's wonderful. You have joined me today. Very good evening, Babita. Wonderful evening. So, guys, let's start the session. Let's start today's session. Yeah, it's wonderful uh, to read that you are wonderful, you are good, Hina. Uh, yes, Hujaifa, for that you have to contact to the coaching. So come first to the coaching, and then you will get the information about the new batches, right? And those guys have connected with me. Please like the video. Okay, just give a thumb up. Please, everybody, give a thumb up, right? So let's start the session. And as you know that from previous sessions, some previous sessions, we are practicing on only the question words. We have started practicing over the question words. We have started using the question words, and we have practiced so many question words in which we have first day we practiced about the what, then where, then what time, then uh, when, right? So today we are going to practice another question word, and that the question word is called how, right? So let's start and let's understand of the use of how question word. And okay, let me tell you that as we know that we have started practicing and knowing how to use the question word when we speak English, when we make the sentences of English. So the question word which we are going to today study, that is called how. How is a question word. It's a question word, right? And we use it for getting the method. किसी भी काम का आपको प्रोसेस जानना है, मेथड जानना है, वे जानना है, तरीका जानना है कि वो काम कैसे हुआ था, होगा या हो सकता है या हो रहा है। किसी काम को मतलब होने का मेथड जानना है कि आप उस काम को कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो उस मेथड को जानने के लिए हम क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं, दैट इज हाउ। एंड वी नो वेरी वेल गाइस दैट whenever we use any question word, so first of all the things which comes in our mind, that is formula of question word. So the formula of question word is that question word plus time word plus doer plus action. You can repeat after me that question word plus time word plus doer plus action. जब भी हम कोई भी सेंटेंस बनाएंगे फॉर क्वेश्चन वर्ड को यूज करके, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला को यूज करेंगे, क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड, डूअर एंड एक्शन, राइट? सो दिस इज द फॉर्मूला। एंड टुडे जो हम क्वेश्चन वर्ड पे प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, दैट इज हाउ, राइट? लाइक सिंपली समझिए कि सपोज दैट मैं कॉलेज जाता हूं और आपको मुझे प्रोसेस पूछना है कि कौन से प्रोसेस से मैं कॉलेज जाता हूं, बस से जाता हूं, कार से जाता हूं, पैदल जाता हूं, ऑटो से जाता हूं, बाइक से जाता हूं, मतलब कौन से प्रोसेस का यूज करके मैं कॉलेज जाता हूं। तो उस प्रोसेस की बातचीत करने के लिए हम क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे, दैट इज ठीक है। यानी सिंपली आपको मुझसे पूछना है कि आप कॉलेज कैसे जाते हैं, तो सेंटेंस होगा हाउ, राइट? क्वेश्चन वर्ड यानी हाउ का यूज करेंगे, तो हाउ हो जाएगा हाउ। टाइम वर्ड, यहां बात प्रेजेंट की चल रही है, तो टाइम वर्ड हो जाएगा डू, एंड डूअर यू है, यू से आप मुझसे क्वेश्चन करें, यू हो जाएगा, एंड एक्शन हो जाएगा गो टू कॉलेज। तो सिंपली आपका जो सेंटेंस हो जाएगा, दैट इज हाउ डू यू गो टू कॉलेज। क्या बोलेंगे? रिपीट आफ्टर मी, हाउ डू यू गो टू कॉलेज, राइट? और अगर यही आपको पूछना है, मेरे पापा के बारे में पूछना है कि आपके पापा कौन से तरीके से
ऑफिस जाते हैं, कौन सा तरीका यूज करते हैं? लाइक वो कार से जाते हैं, बस से जाते हैं, बाइक से जाते हैं, या कैसे जाते हैं? मतलब ऑटो से जाते हैं, तो कौन से तरीके से होकर के बाइक मतलब जाते हैं? तो आपको मुझसे पूछना है। तो यहाँ पे आपको प्रोसेस पूछना है, तो जिसके लिए हम यूज करेंगे हाउ। बात प्रेजेंट की चल रही है, पापा की चल रही है, तो टाइम वर्ड आ जाएगा डस, मेरे पापा यानी योर फादर, एंड गो टू ऑफिस, एक्शन हो जाएगा गो टू ऑफिस। तो सेंटेंस बनेगा, चलिए मुझसे पूछिए कि आपके पापा ऑफिस कैसे जाते हैं? कम ऑन, हाउ डज योर फादर गो टू ऑफिस? वंस अगेन, हाउ डज योर फादर गो टू ऑफिस? राइट? सपोज दैट ओके, मेरी सिस्टर गोमती नगर से आई थी, आपको पता है कि मेरी सिस्टर गोमती नगर गई थी और वहां से आई थी, राइट? और आपको प्रोसेस जानना है कि आपकी सिस्टर गोमती नगर से आई कैसे थी, क्या चूज किया था, बस, बाइक, ऑटो या स्कूटी वगैरह से आई थी। तो आपको प्रोसेस जानना है कि आपकी सिस्टर गोमती नगर से आई कैसे थी। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे हाउ, यूज करेंगे। इट मींस हाउ। पास्ट की बात करें तो टाइम वर्ड डिड हो जाएगा, और मेरी सिस्टर यानी योर सिस्टर हो जाएगा, और आने को बोलते हैं कम, और गोमती नगर से फ्रॉम गोमती नगर। तो सेंटेंस हो जाएगा हाउ डिड योर सिस्टर कम फ्रॉम गोमती नगर? रिपीट आफ्टर मी, हाउ डिड योर सिस्टर कम फ्रॉम गोमती नगर? राइट? सपोज दैट कि मेरे अंकल है वो मुंबई जा रहे हैं, आपको कंफर्म है कि मेरे अंकल है मुंबई जा रहे हैं, एंड आपको प्रोसेस पूछना है कि आपके अंकल मुंबई जा कैसे रहे हैं? प्लेन से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, मतलब कैसे, कौन सा प्रोसेस यूज करके जा रहे हैं? सो प्रोसेस यूज जानना है, मेथड जानना है, तो इसके लिए हाउ का यूज करेंगे। और कंटिन्यू है, अंकल है, तो यहाँ पे टाइम वर्ड इज आ जाएगा, मेरे अंकल यानी यो अंकल, एंड जा रहे यानी गोइंग, कहा, मुंबई, तो टू मुंबई। तो सिंपली हो जाएगा पूछने के लिए कि आपके अंकल मुंबई कैसे जा रहे हैं, हाउ इज योर अंकल गोइंग टू मुंबई? क्या बोलेंगे? हाउ इज योर अंकल गोइंग टू मुंबई? राइट? चलिए इसी से हम थोड़ा सा सेंटेंस बनाते हैं, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं, ताकि क्लियर हो जाए कि सारी चीजें कैसे हो रही है। ओके, सो या वेलकम बैक। या थोड़ा सा वो टेक्निकल इश्यूज हो गए थे, जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हुई, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, और इस पे हम थोड़ी सी सेंटेंस बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ताकि हमें और भी अच्छे से क्लियरिटी हो जाए, ठीक है। जैसे आप मुझसे पूछिए कि आपकी मम्मी, आपकी मम्मी मार्केट कैसे जाएंगी? आस्क, आपकी मम्मी मार्केट कैसे जाएंगी? हाउ विल योर मदर गो टू मार्केट? वंस अगेन, हाउ will your mother go to market? Ask me, he he चारबाग, he चारबाग कैसे जा सकता है? Come on, he चारबाग कैसे जा सकता है? How can he go to चारबाग? Once again, how can he go to चारबाग? Ask me, आप मार्केट कैसे गए गए थे? आप मार्केट कैसे गए थे? हाउ डिड यू गो टू मार्केट? वंस अगेन, हाउ डिड यू गो टू मार्केट? ओके, आस्क, आपकी आपका भाई, आपका भाई आ, हाँ, आपका भाई आलमबाग, आपका भाई आलमबाग कैसे गया है? आस्क, आपका भाई आलमबाग कैसे गया है? हाउ हैज योर ब्रदर गॉन टू आलमबाग? वंस अगेन, हाउ हैज योर ब्रदर गॉन टू आलमबाग? आस्क मी, आप मुंबई कैसे जाना चाहते हैं? कम ऑन, आप मुंबई कैसे जाना चाहते हैं? हाउ डू यू वाना गो टू मुंबई? वंस अगेन, हाउ डू यू वाना गो टू मुंबई? आपके पापा को, आस्क मी, आपके पापा को मार्केट जाना कैसे पसंद है? यानी आपके पापा को कैसे मार्केट जाना पसंद है? कम ऑन, आस्क आस्क, यस या, आपके पापा को कैसे मार्केट जाना पसंद है? हाउ डज योर फादर लाइक टू गो टू मार्केट? वंस अगेन,
how does your father like to go to market? Okay, ask me, आपके अंकल, राइट, आपके अंकल आ कैसे रहे हैं, आपके अंकल कैसे आ रहे हैं, चलिए पूछिए मुझसे, आपके अंकल कैसे आ रहे हैं? हाउ इज योर अंकल कमिंग? क्या बोलेंगे? हाउ इज योर अंकल कमिंग? आस्क मी, आप वहां कैसे जा सकते हैं? आप वहां जा कैसे सकते हैं? कम ऑन आस्क, आप वहां कैसे जा सकते हैं? हाउ कैन यू गो देयर? वंस अगेन, हाउ कैन यू गो देयर? ओके, आस्क मी, आपका पड़ोसी, आपका पड़ोसी कैसे कोशिश करता है ऑफिस जाने की? आपका पड़ोसी ऑफिस जाने की कैसे कोशिश करता है? कम ऑन आस्क, आस्क, या हाउ डज योर नेबर try to go to office? Once again, how does your neighbor try to go to office? Right now, here you can say we are the making sentences, only asking questions, but you know very well that we never only ask the questions. हम केवल सिर्फ कभी क्वेश्चन ही नहीं करते, आंसर्स भी तो देते हैं ना. इफ समबडी इज आस्किंग क्वेश्चन तो रिप्लाई भी तो करना होगा ना. तो रिप्लाईज को कैसे करेंगे? राइट, जैसे सपोज दैट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डू यू गो टू कॉलेज? राइट, अब आपको रिप्लाई करना है कि मैं कॉलेज बस से जाता हूं. चलो रिप्लाई करो कि मैं कॉलेज बस से जाता हूं. तो होगा आई गो टू कॉलेज बाय बस. क्या बोलेंगे? आई गो टू कॉलेज बाय बस. राइट, लाइक हियर द क्वेश्चन इज हाउ डज योर फादर गो टू ऑफिस? राइट, क्वेश्चन इज हाउ डज योर फादर गो टू ऑफिस, और आपको रिप्लाई करना है कि मेरे पापा ऑफिस कार से जाते हैं. रिप्लाई करो, मेरे पापा ऑफिस कार से जाते हैं. माई फादर गोज टू ऑफिस बाय कार. क्या बोलेंगे? माई फादर गोज टू ऑफिस बाय कार. राइट, हियर द क्वेश्चन इज हाउ डिड योर सिस्टर कम फ्रॉम गोमती नगर? राइट, हाउ डिड योर सिस्टर कम फ्रॉम गोमती नगर, और आपको रिप्लाई करना है कि मेरी सिस्टर स्कूटी से, गोमती नगर से स्कूटी से आई थी. चलिए रिप्लाई करिए, मेरी सिस्टर गोमती नगर से स्कूटी से आई थी. माई सिस्टर केम फ्रॉम गोमती नगर बाय स्कूटी. वंस अगेन, माई सिस्टर केम फ्रॉम गोमती नगर बाय स्कूटी. राइट, द हियर क्वेश्चन इज हाउ इज योर अंकल गोइंग टू मुंबई? राइट, हाउ इज योर अंकल गोइंग टू मुंबई, और आपको रिप्लाई करना है कि मेरे अंकल मुंबई जा रहे हैं प्लेन से. चलो बोलो, मेरे अंकल मुंबई प्लेन से जा रहे हैं. माई अंकल इज गोइंग टू मुंबई बाय प्लेन. वंस अगेन, माई अंकल इज गोइंग टू मुंबई बाय प्लेन. राइट, सो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा. अब जरा ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम किसी भी व्हीकल का नाम ले रहे हैं, वो चाहे कार है, चाहे बस है, चाहे स्कूटी है, चाहे प्लेन है, तो यहाँ पे हम एक प्रेपोजिशन यूज कर रहे हैं, दैट द प्रेपोजिशन नेम इज बाय. बाय स्कूटी, बाय कार, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, मतलब बाय बाय का यूज करें. अभी जो बाय है ये आता ही आता है, जब भी किसी व्हीकल का यूज करेंगे, व्हीकल को बताएंगे तो व्हीकल से पहले आप बाय का यूज करेंगे. बट ये जो बाय है ये कॉमन है. कॉमन का मतलब है कि आप चाहे किसी भी व्हीकल का नाम लीजिए, बाइक, स्कूटी, बस, ट्रक, प्लेन, ट्रेन, कोई भी लीजिए, तो सबके साथ आप बाय का यूज करेंगे. बट आज के जमाने में लोगों ने इस बाय को चेंज कर दिया है, इसको हटा दिए हैं. इस बाय को यूज ही नहीं करते हैं, और इसी की जगह पे दो प्रेपोजिशन यूज करते हैं. पहला है ऑन और दूसरा है इन. राइट, सो आई एम जस्ट रिपीटिंग यू कि आज के जमाने में लोगों ने व्हीकल से पहले बाय को हटा दिए हैं, क्योंकि ये कॉम पुराना हो गया है. तो इसको हटा करके इसके जगह पे हम दो प्रेपोजिशन यूज करते हैं, एक ऑन का यूज करते हैं और दूसरा इन का यूज करते हैं. अब देखो, इन का मतलब होता है किसी चीज के अंदर, और ऑन का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर. तो अगर आप इस सिंपल सी स्कूटी की बात करोगे या बाइक की बात करोगे तो ऑन का यूज करोगे डेफिनेटली, लाइक ऑन स्कूटी हो गया या ऑन बाइक हो गया. बट थोड़े से यहाँ पे ट्विस्ट ये होता है कि बहुत से ऐसे व्हीकल्स होते हैं जिसके अंदर हम बैठ के जाते हैं, लेकिन हम फिर भी इन का यूज नहीं करके ऑन का यूज करते हैं, और इसी को आपको समझना होगा. देखो, अगर किसी चीज के ऊपर बैठ के जाओ तो डेफिनेटली आप ऑन का तो यूज करोगे, जैसे बाइक हो गई, स्कूटी हो गई या साइकिल वगैरह हो गया. बट बहुत से ऐसे व्हीकल्स होते हैं जिनके हम अंदर बैठ के जाते हैं, बट हम इनका ना यूज करके ऑन का यूज करते हैं. तो इसका डेफिनेशन क्या है, क्राइटेरिया क्या है, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पे डेफिनेशन और क्राइटेरिया लिख के रखा है, जिसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा. जब हम बात करेंगे किसी व्हीकल की, तो उस व्हीकल से पहले हम ऑन का यूज करेंगे. मतलब जो व्हीकल्स होगी, व्हीकल इन विच वी कैन वॉक, यानी कोई ऐसा व्हीकल होगा, कोई ऐसा साधन होगा जिसमें आप चल सकते हो, कोई वाहन ऐसा है जिसमें आप वॉक कर सकते हो, चल सकते हो. तो उससे पहले अगर आप उसका नाम बताओगे
तो उससे पहले आप यूज करोगे ऑन। जैसे बस की बात करें तो बस में हम चल सकते हैं, इसलिए बस से पहले हम यूज करेंगे ऑन का। ट्रेन की बात करें तो ट्रेन में हम चल सकते हैं, इसलिए ट्रेन से पहले यूज करते हैं ऑन का। प्लेन की बात करें, प्लेन में हम चल सकते हैं, इसलिए हम प्लेन से पहले यूज करेंगे ऑन का। या अगर हम मेट्रो की बात करें तो मेट्रो में हम चल सकते हैं, इसलिए हम मेट्रो से पहले यूज करेंगे ऑन का। ये डेफिनेशन हो गया। दूसरा है आपका इन, और इनका हम यूज करते हैं व्हीकल इन विच वी कांट वॉक, यानी कोई ऐसा वाहन है, कोई ऐसा साधन है जिसमें आप वॉक नहीं कर सकते हो। आप डायरेक्टली बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट आप उसमें वॉक नहीं कर सकते हो। बैठ सकते हो, वॉक नहीं कर सकते हो। अगर उसका नाम आप बताओगे तो उससे पहले आप यूज करोगे इन का। जैसे हम कार की बात करें तो आपने देखा होगा कि कार में हम बैठ तो सकते हैं लेकिन चल नहीं सकते, खड़े हो नहीं सकते, तो इसलिए हमेशा इन कार हो गया। ऑटो की बात करें तो आप देखिए क्योंकि ऑटो में हम बैठ तो सकते हैं, चल नहीं सकते, इसलिए ऑटो के लिए हम यूज करते हैं इन ऑटो। ट्रक की बात करें तो ट्रक में देखो हम चल तो सकते हैं, सॉरी हम उसमें बैठ तो सकते हैं लेकिन चल नहीं सकते हैं, इसलिए ट्रक से पहले भी इन का यूज किया जाता है। तो इन कार, इन ऑटो, इन ट्रक। सिंपल सा है, आई एम जस्ट रिपीटिंग अगेन कि जिस भी व्हीकल, जिस भी वाहन में आप चल सकते हो तो उससे पहले आप ऑन का यूज कर लेना, और जिसमें आप चल नहीं सकते हो, सिर्फ बैठ सकते हो, तो उससे पहले आप इन का यूज कर लेना। सिंपल सा है, ठीक है। चलिए हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं ताकि क्लियरिटी और भी अच्छे से हो जाए, तो समझ में आए, ठीक है। जैसे आप मुझसे पूछिए, चलिए मुझसे पूछिए कि आप ऑफिस कैसे जाते हैं, पूछिए मुझसे आप ऑफिस कैसे जाते हैं। कम ऑन आस्क, आप ऑफिस कैसे जाते हैं। हाउ डू यू गो टू ऑफिस। वंस अगेन, हाउ डू यू गो टू ऑफिस। तो मैं ऑफिस कार से जाता हूं। चलिए रिप्लाई करो कि मैं ऑफिस कार से जाता हूं। आई गो टू ऑफिस इन कार। क्या बोलेंगे, आई गो टू ऑफिस इन कार, राइट। आस्क मी, आपकी मम्मी मार्केट कैसे जाएंगी। आस्क, कम ऑन आस्क, आपकी मम्मी मार्केट कैसे जाएंगी। हाउ विल योर मदर गो टू मार्केट। वंस अगेन, हाउ विल योर मदर गो टू मार्केट। तो मेरी मम्मी मार्केट ऑटो से जाएगी। या कम ऑन रिप्लाई मी कि मेरी मम्मी मार्केट ऑटो से जाएगी। माय मदर विल गो टू मार्केट इन ऑटो। वंस अगेन, माय मदर विल गो टू मार्केट इन ऑटो। आस्क मी, आप हैदराबाद कैसे जा सकते हैं। कम ऑन, आप हैदराबाद कैसे जा सकते हैं। कम ऑन आस्क मी, आप हैदराबाद कैसे जा सकते हैं। हाउ कैन यू गो टू हैदराबाद। वंस अगेन, हाउ कैन यू गो टू हैदराबाद। तो मैं हैदराबाद प्लेन से जा सकता हूं। बोलो, मैं हैदराबाद प्लेन से जा सकता हूं। आई कैन गो टू हैदराबाद ऑन प्लेन। क्या बोलेंगे, आई कैन गो टू हैदराबाद ऑन प्लेन। आस्क मी, आपके पापा मुंबई कैसे गए हैं। कम ऑन, आपके पापा मुंबई कैसे गए हैं। हाउ हैज योर फादर गॉन टू मुंबई। वंस अगेन, हाउ हैज योर फादर गॉन टू मुंबई। तो मेरे पापा मुंबई ट्रेन से गए। चलिए रिप्लाई करिए, मेरे पापा मुंबई ट्रेन से गए। कम ऑन रिप्लाई, माय फादर हैज गॉन टू मुंबई ऑन ट्रेन। क्या बोलेंगे, माय फादर हैज गॉन टू मुंबई ऑन ट्रेन। ओके, आस्क मी, आपका दोस्त आपके घर कैसे आ रहा है। कम ऑन, आपका दोस्त आपके घर कैसे आ रहा है। हाउ इज योर फ्रेंड कमिंग टू योर प्लेस। वंस अगेन, हाउ इज योर फ्रेंड कमिंग टू योर प्लेस। तो मेरा दोस्त मेरे घर स्कूटी से आ रहा है। कम ऑन, मेरा दोस्त मेरे घर स्कूटी से आ रहा है। माई फ्रेंड इज कमिंग टू माई प्लेस ऑन स्कूटी। वंस अगेन, माई फ्रेंड इज कमिंग टू माई प्लेस ऑन स्कूटी। आस्क मी, आप विदेश कैसे जाना चाहते हैं। कम ऑन, आस्क मी, आप विदेश कैसे जाना चाहते हैं। हाउ डू यू वाना गो अब्रॉड। वंस अगेन, हाउ डू यू वाना गो अब्रॉड। तो मैं विदेश प्लेन से, ऑब्वियसली प्लेन से जाना चाहता हूं। बोलो, मैं विदेश प्लेन से जाना चाहता हूं। आई वाना गो अब्रॉड ऑन प्लेन। वंस अगेन, आई वाना गो अब्रॉड ऑन प्लेन। आस्क मी, आपका दोस्त कैसे कॉलेज जाने की कोशिश करता है। आपका दोस्त कॉलेज जाने की कोशिश कैसे करता है। हाउ डज योर फ्रेंड ट्राई टू गो टू कॉलेज। वंस अगेन, हाउ डज योर फ्रेंड ट्राई टू गो टू कॉलेज। तो मेरा दोस्त बाइक से कोशिश करता है कॉलेज जाने की। कम ऑन, मेरा दोस्त कॉलेज जाने की कोशिश करता है बाइक से। माई फ्रेंड ट्राइज टू गो टू कॉलेज ऑन बाइक। वंस अगेन, माई फ्रेंड ट्राइज टू गो टू कॉलेज ऑन बाइक। चलिए मुझसे पूछे कि आपको मार्केट कैसे जाने की जरूरत है। कम ऑन, आपको मार्केट कैसे जाने की जरूरत है। हाउ डू यू नीड टू गो टू मार्केट। क्या बोलेंगे, हाउ डू यू नीड टू गो टू मार्केट।
तो मुझे मार्केट पैदल जाने की जरूरत है। चलो बोलो, मुझे पैदल मार्केट जाने की जरूरत है। आई नीड टू गो टू मार्केट ऑन फुट। वंस अगेन, आई नीड टू गो टू मार्केट ऑन फुट। चलिए मुझसे पूछिए कि आपके मम्मी को लाइक हाँ, आपकी मम्मी को गांव जाना कैसे पसंद है? आपकी मम्मी को गांव जाना कैसे पसंद है? हाउ डज योर मदर लाइक टू गो टू विलेज? वंस अगेन, हाउ डज योर मदर लाइक टू गो टू विलेज? तो मेरी मम्मी को कार से गांव जाना पसंद है। कम ऑन, मेरी मम्मी को गांव जाना कार से पसंद है। माई मदर लाइक्स टू गो टू विलेज इन कार। वंस अगेन, माई मदर लाइक्स टू गो टू विलेज इन द कार। ओके, आस्क मी, आपका दोस्त कानपुर कैसे जा सकता है? आपका दोस्त कानपुर कैसे जा सकता है? हाउ कैन योर फ्रेंड गो टू कानपुर? वंस अगेन, हाउ कैन योर फ्रेंड गो टू कानपुर? तो मेरा दोस्त कानपुर बस से जा सकता है। चलिए बोलिए, मेरा दोस्त कानपुर बस से जा सकता है। माई फ्रेंड कैन गो टू कानपुर ऑन बस। वंस अगेन, माई फ्रेंड कैन गो टू कानपुर ऑन बस। सो आई होप ये क्लियर हो गया। बट लिसन, ये आपने यहां पे देखा कि जब भी हम बात करें आने या जाने की बात करें, व्हीकल्स की बात करें, बस, कार, ट्रक, ऑटो, लाइक ब्ला ब्ला की बात करें, यानी सिर्फ आने या जाने की बात करें। बट इट्स नॉट लाइक दैट कि जब हम प्रोसेस पूछते हैं तो सिर्फ आने एंड जाने के ही प्रोसेस पूछते हैं। नहीं, हर एक काम के करने को प्रोसेस पूछते हैं। चाहे कोई भी काम हो, अगर उसका प्रोसेस पूछना है तो हर एक काम के करने के प्रोसेस को पूछने के लिए हाउ का यूज करते हैं। तो फिलहाल इसके लिए हम आगे कंटिन्यू करेंगे और इसको जानेंगे। सो पहले मुझे कंफर्म करिए कि क्या ये जो अभी आपको बताया गया है आने एंड जाने का, यानी व्हीकल्स के प्रोसेस को, क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई? सो अगर क्लियर हो गई तो आप चैट बॉक्स में जाइए और उसमें लिखिए आप क्लियर्ड। एंड वन मोर थिंग इज दैट कि अगर आज आप पहली बार इस सेशन को ज्वाइन किए हैं, राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेशन डेली लाता रहता हूं, मंडे टू सैटरडे। टाइमिंग है शार्प 8 o'clock। 8 o'clock आप मुझसे लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं, जिसमें हम मिलकर के प्रैक्टिस करेंगे और बहुत अपनी इंग्लिश को बहुत बेहतर बनाएंगे। और जो प्रैक्टिस की नीड होती है इसको हम प्रॉपर्ली खत्म कर पाएंगे, जो टेंशन होती है उसको प्रॉपर्ली खत्म कर पाएंगे और हम अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे। तो हम आपसे जुड़ जाएंगे मंडे टू सैटरडे शार्प 8 o'clock। सो वीडियो को लाइक भी कीजिए एंड प्लस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, राइट। सो गो टू द चैट बॉक्स एंड राइट डाउन आप क्लियर। देन हम कंटिन्यू करते हैं आगे की तरफ। गाइस, सो लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं। क्योंकि लिसन, जब हम बातचीत करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, सिर्फ आने एंड जाने के, यानी सिर्फ व्हीकल के प्रोसेस के लिए हाउ का यूज नहीं करते। किसी भी काम का प्रोसेस जानना हो तो उसके लिए हम हाउ का यूज करेंगे, ठीक है। लाइक सपोज दैट, चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। जैसे सपोज दैट कि मेरे अंकल कार खरीदेंगे, राइट, मेरे अंकल कार खरीदेंगे, ये कंफर्म है आपको कि माय अंकल विल परचेज कार। और आपको मुझसे पूछना है, चलिए मुझसे पूछिए
कि आपके अंकल कार कैसे खरीदेंगे। कम ऑन, फॉर्मूला यही होगा, क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड, डूअर, एक्शन। तो मुझसे पूछे कि आपके अंकल कार कैसे खरीदेंगे, हाउ विल योर अंकल परचेस कार। क्या बोलेंगे, हाउ विल योर अंकल परचेस कार। तो मेरे अंकल, चले बोलिए कि मेरे अंकल कार लोन से खरीदेंगे, या कम ऑन स्पीक, मेरे अंकल कार लोन से खरीदेंगे। माय अंकल विल परचेस कार बाय लोन। क्या बोलेंगे, माय अंकल विल परचेस कार बाय लोन। तो चलिए मुझसे पूछे कि आपके अंकल लोन चुकाएंगे कैसे। कम ऑन, आपके अंकल लोन कैसे चुकाएंगे। अच्छा, लोन चुकाना जिसे हम बोलते हैं रीपे द लोन, या लोन को हम डेट बोलते हैं, डेट, डी बी टी, बट बी साइलेंट रखते हैं और मुझसे बोलते हैं डेट। तो मुझसे पूछे कि आपके अंकल लोन कैसे चुकाएंगे, हाउ विल यू अंकल रीपे द डेट। वंस अगेन, हाउ विल यू अंकल रीपे द डेट। तो मेरे अंकल लोन चुकाएंगे जॉब करके। चलिए बोलिए, मेरे अंकल लोन चुकाएंगे जॉब करके। माय अंकल विल रीपे द डेट बाय डूइंग द जॉब। वंस अगेन, माय अंकल विल रीपे द डेट बाय डूइंग द जॉब। मुझसे पूछे कि आपका भाई कैसे मूवी देख सकता है। कम ऑन, आपका भाई मूवी कैसे देख सकता है, हाउ कैन योर ब्रदर वॉच मूवी। वंस अगेन, हाउ कैन यू ब्रदर वॉच मूवी। तो मेरा भाई मूवी देख सकता है थिएटर में, थिएटर में जाकर के, थिएटर में बैठ के मूवी देख सकता है। बोलो कि मेरा भाई थिएटर में बैठ के मूवी देख सकता है, या स्क्रीन पे देख सकता है, बड़ी सी स्क्रीन पे। चलो बोलो कि मेरा भाई बड़ी सी स्क्रीन पे मूवी देख सकता है। सो माय ब्रदर कैन वॉच मूवी, ओके, विद द हेल्प ऑफ बिग स्क्रीन। क्या बोलेंगे, माय 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 ब्रदर कैन वॉच मूवी विद द हेल्प ऑफ बिग स्क्रीन। चलिए मुझसे पूछिए कि आपकी सिस्टर ने रूम को कैसे सजाया है। कम ऑन आस्क, आपकी सिस्टर ने रूम को कैसे सजाया है, हाउ हैज योर सिस्टर डेकोरेटेड द रूम। वंस अगेन, हाउ हैज योर सिस्टर डेकोरेटेड द रूम। तो मेरी सिस्टर ने बलून्स एंड लाइट्स का यूज करके, फेरी लाइट होती है ना, जो छोटी मोटी लाइट जलती है, तो फेरी लाइट का, ठीक है। तो मेरी सिस्टर ने बलून्स एंड फेरी लाइट से रूम को सजाया। बोलो कम, क्या बोलेंगे, माय सिस्टर हैज डेकोरेटेड रूम, yes, my sister has decorated room by balloon and fairy lights. Once again, my sister has decorated room by balloons and fairy lights. या आप बोल सकते हो कि मेरी सिस्टर ने मम्मी की मदद से, यानी मम्मी की मदद लेकर के रूम को डेकोरेट किया। चलिए रिप्लाई करो कि मेरी सिस्टर ने मम्मी की मदद लेकर के रूम डेकोरेट किया है। My sister has decorated room with the help of my mother. Once again, my sister has decorated room with the help of my mother. Okay, ask me, आपका भाई बिजनेस कैसे शुरू करेगा। कम ऑन, आपका भाई बिजनेस कैसे शुरू करेगा, हाउ विल योर ब्रदर स्टार्ट बिजनेस। वंस अगेन, हाउ विल योर ब्रदर स्टार्ट बिजनेस। तो मेरा भाई बिजनेस शुरू करेगा पापा की मदद से। चलिए बोलिए, मेरा भाई पापा की मदद से बिजनेस शुरू करेगा। माय ब्रदर विल स्टार्ट बिजनेस विद द हेल्प ऑफ माय फादर। वंस अगेन, माय ब्रदर विल स्टार्ट बिजनेस विद द हेल्प ऑफ माय फादर। तो मुझसे पूछिए कि आप, चलिए मुझसे पूछिए कि आप कपड़े कैसे धोते हैं। कम ऑन, आप कपड़े कैसे धोते हैं, हाउ डू यू वॉश द क्लोथ्स। क्या बोलेंगे, हाउ डू यू वॉश द क्लोथ्स। तो मैं मशीन से, मैं वॉशिंग मशीन से कपड़े धुलता हूं। बोलो, मैं वॉशिंग मशीन से कपड़े धुलता हूं। आई वॉश द क्लोथ्स बाय यूजिंग वॉशिंग मशीन्स। वंस अगेन, आई वॉश द क्लोथ्स बाय यूजिंग वॉशिंग मशीन्स। राइट, आस्क मी, आपकी आंट, राइट, आपकी आंट लाइक मार्केट, राइट, आपकी आंट मार्केट कैसे जा सकती है। चलो पूछो, आपकी आंट मार्केट कैसे जा सकती है, हाउ कैन यू आंट गो टू मार्केट। क्या बोलेंगे, हाउ कैन यू आंट गो टू मार्केट। तो मेरी आंट मेरे अंकल की मदद से मार्केट जा सकती है। चलो बोलो, मेरी आंट मेरे अंकल की मदद से मार्केट जा सकती है। माई आंट कैन गो टू मार्केट with the help of my uncle. Once again, my aunt can go to market with the help of my uncle. Ask me, आप कपड़े कैसे खरीदेंगे। Come on, ask me, आप कपड़े कैसे खरीदेंगे, how will you purchase clothes। क्या बोलेंगे, how will you
परचेज क्लोथ्स। तो मैं कपड़े शॉपिंग मॉल में जाकर के खरीदूंगा। बोलो, मैं शॉपिंग मॉल में जाकर के कपड़े खरीदूंगा। I'll purchase clothes by going to shopping mall। क्या बोलेंगे? I'll purchase clothes by going to shopping mall। Ask me, आपका दोस्त आईएएस की तैयारी कैसे कर सकता है? चलिए बोलिए, आपका दोस्त आईएएस की तैयारी कैसे कर सकता है? कम ऑन, हाउ कैन योर फ्रेंड प्रिपेयर फॉर आईएएस? वंस अगेन, हाउ कैन योर फ्रेंड प्रिपेयर फॉर आईएएस? तो मेरा दोस्त कोचिंग की मदद से, मेरा दोस्त कोचिंग की मदद से आईएएस की तैयारी कर सकता है। कम ऑन, मेरा दोस्त कोचिंग की मदद से आईएएस की तैयारी कर सकता है। माय फ्रेंड कैन प्रिपेयर फॉर आईएएस विद द हेल्प ऑफ कोचिंग। वंस अगेन, माय फ्रेंड कैन प्रिपेयर फॉर आईएएस विद द हेल्प ऑफ कोचिंग। आस्क मी, आप यूपीएससी क्लियर कैसे करेंगे? कम ऑन, आप यूपीएससी क्लियर कैसे करेंगे? हाउ विल यू क्लियर द यूपीएससी? वंस अगेन, हाउ विल यू क्लियर द यूपीएससी? तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई करके यूपीएससी क्लियर करूंगा। बोलो, मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई करके यूपीएससी क्लियर कर। अच्छा, बहुत ज्यादा पढ़ाई करने को बोलते हैं स्टडी अलॉट। क्या बोलते हैं? स्टडी अलॉट। बट आप स्टडी अलॉट ना यूज करके आप यूज कर सकते हैं हिट द बुक्स। क्या बोलेंगे? हिट द बुक्स। तो बोलो कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई करके यूपीएससी क्लियर कर सकता हूं, तो करूंगा। सो आई विल क्लियर यूपीएससी बाय हिटिंग द बुक्स। वंस अगेन, आई विल क्लियर यूपीएससी बाय हिटिंग द बुक्स। वंस यू रिपीट, यस, कम ऑन, रिपीट आफ्टर मी। आई विल क्लियर यूपीएससी बाय हिटिंग द बुक्स। मुझसे पूछो कि आप इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं? कम ऑन, आप इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं? हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश? तो बोलो, वंस अगेन आस्क मी, कि आप इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं? हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश? तो रिप्लाई करो कि मैं इंग्लिश प्रैक्टिस करके मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। कम ऑन, मैं प्रैक्टिस करके इंग्लिश बोल सकता हूं। आई कैन स्पीक इंग्लिश बाय प्रैक्टिसिंग। क्या बोलेंगे? आई कैन स्पीक इंग्लिश बाय प्रैक्टिसिंग। ओके, आस्क मी कि आपके अंकल ने टिकट कैसे बुक किया था? कम ऑन, आपके अंकल ने टिकट कैसे बुक किया था? हाउ डिड योर अंकल बुक द टिकट्स? वंस अगेन, हाउ डिड योर अंकल बुक द टिकट्स? तो मेरे अंकल ने टिकट बुक किया था ऑनलाइन ऐप से, ऑनलाइन ऐप का यूज करके मेरे अंकल ने टिकट बुक किया था। बोले, सो माय अंकल बुक्ड टिकट्स बाय यूजिंग ऑनलाइन एप्स। वंस अगेन, माय अंकल बुक्ड टिकट्स बाय यूजिंग ऑनलाइन एप्स। मुझसे पूछे कि आपने वीडियो कैसे बनाया है, शूट किया है? बोलिए मुझसे, आपने वीडियो कैसे शूट किया है? हाउ हैव यू शूटेड द वीडियो? वंस अगेन, हाउ हैव यू शूटेड द वीडियो? सो मैंने शूट किया अपने दोस्त की मदद से। कम ऑन, मैंने अपने दोस्त की मदद से वीडियो शूट किया है। आप शूटेड वीडियो विद द हेल्प ऑफ माय फ्रेंड। क्या बोलेंगे? आप शूटेड वीडियो विद द हेल्प ऑफ माय फ्रेंड। आस्क मी, ही कैसे जंप करेगा? बोले, ही कैसे जंप करेगा? कम ऑन, ही जंप कैसे करेगा? हाउ कैन ही जंप? वंस अगेन, हाउ कैन ही ही कैसे जंप करेगा? हाउ विल ही जंप? वंस अगेन, हाउ विल ही जंप? तो ही रस्सी की मदद से जंप करेगा। बोलो, ही रस्सी की मदद से यानी रोप की मदद से जंप करेगा। हिल जंप विद द हेल्प ऑफ रोप। क्या बोलेंगे? हिल जंप विद द हेल्प ऑफ रोप। मुझसे पूछिए कि आप कैसे उड़ सकते हैं? कम ऑन, आप कैसे उड़ सकते हैं? बोलिए, आप कैसे उड़ सकते हैं? हाउ कैन यू फ्लाई? वंस अगेन, हाउ कैन यू फ्लाई? तो मैं कामयाब होकर के उड़ सकता हूं। बोलो, मैं कामयाब होकर के उड़ सकता हूं। आई कैन फ्लाई बाय गेटिंग सक्सेस। वंस अगेन, आई कैन फ्लाई बाय गेटिंग सक्सेस। वंस अगेन, आई कैन फ्लाई बाय गेटिंग सक्सेस। आस्क मी, सी अपने नॉलेज को कैसे बढ़ा सकती है, इनहेंस कर सकती है? बोलिए, सी अपने नॉलेज को कैसे इनहेंस कर सकती है? हाउ कैन सी इनहेंस हर नॉलेज? वंस अगेन, हाउ कैन सी इनहेंस हर नॉलेज? तो सी अपनी नॉलेज किताबें पढ़ के बढ़ा सकती है। कम ऑन, सी अपनी नॉलेज किताबें पढ़ के बढ़ा सकती है। सी कैन इनहेंस हर नॉलेज बाय रीडिंग बुक्स। वंस अगेन, सी कैन इनहेंस हर नॉलेज बाय रीडिंग बुक्स। आस्क मी, आपके पापा अपनी सेहत को कैसे सही करेंगे, मतलब क्योर करेंगे?
आपके पापा अपनी सेहत को कैसे क्योर करेंगे? कम ऑन, आस्क मी, हाउ विल योर फादर क्योर हिज हेल्थ? वंस अगेन, हाउ विल योर फादर क्योर हिज हेल्थ? तो मेरे पापा योगा करके, मेरे पापा योगा करके अपनी सेहत को सही करेंगे, ठीक करेंगे। कम ऑन रिप्लाई, मेरे पापा योगा करके अपनी सेहत को ठीक करेंगे। माय फादर विल क्योर हिज हेल्थ बाय डूइंग योगा। वंस अगेन, माय फादर विल क्योर हिज हेल्थ बाय डूइंग योगा। ओके, आस्क मी कि आपने इंटरव्यू कैसे क्लियर किया था? आपने इंटरव्यू कैसे क्लियर किया था? कम ऑन, हाउ डिड यू क्लियर द इंटरव्यू? वंस अगेन, हाउ डिड यू क्लियर द इंटरव्यू? तो मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छी करके क्लियर किया था। मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छी करके इंटरव्यू क्लियर किया था। सो आई क्लियर्ड इंटरव्यू बाय इंप्रूविंग माय कम्युनिकेशन स्किल। वंस अगेन, आई क्लियर्ड इंटरव्यू बाय इंप्रूविंग माय कम्युनिकेशन स्किल। सो आस्क मी कि आपको मार्केट कैसे जाना पसंद है? कम ऑन, आपको मार्केट कैसे जाना पसंद है? हाउ डू यू लाइक टू गो टू मार्केट? वंस अगेन, हाउ डू यू लाइक टू गो टू मार्केट? तो मुझे मार्केट पैदल जाना पसंद है। कम ऑन, मुझे पैदल मार्केट जाना पसंद है। आई लाइक टू गो टू मार्केट ऑन फुट। वंस अगेन, आई लाइक टू गो टू मार्केट ऑन फुट। मुझसे पूछो कि आप इंग्लिश कैसे बेहतर करोगे? आप अपनी इंग्लिश को बेहतर कैसे करोगे? हाउ विल यू मेक योर इंग्लिश बेटर? वंस अगेन, हाउ विल यू मेक योर इंग्लिश बेटर? तो मैं प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश को बेहतर करूंगा। चलो बोलो, मैं प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश को बेहतर करूंगा। I'll make my English better by practicing. Once again, I'll make my English better by practicing. या मैं सोहन सर की लाइव क्लास अटेंड करके, लाइव सेशन अटेंड करके अपनी इंग्लिश को बेहतर करूंगा। चलो बोलो, मैं सोहन सर की लाइव सेशन अटेंड करके अपनी इंग्लिश को बेहतर करूंगा। सो I'll make my English better by attending सोहन सर्स लाइव सेशन. Once again, I'll make my English better by attending सोहन सर्स लाइव सेशन. सो आई होप आपने अच्छी प्रैक्टिस की होगी और आपने इस प्रैक्टिस को एंजॉय किया होगा और आपको हाउ और भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा. सो अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी लगी और वंस अगेन आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आप मेरे साथ डेली मंडे टू सैटरडे 7-8 o'clock जुड़ना मत भूलिए. और मैं आपके लिए बेहतरीन, ऐसे ही बेहतरीन तरीके की प्रैक्टिस सेशन हर एक टॉपिक पे लाता रहूंगा. सो आज की सेवा आपकी यहीं पे समाप्त होती है. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय.